Good morning students. So today I am going to finish this topic applications of definite integration with last 3 examples of miscellaneous exercise. In last video lecture we completed, in some previous video lecture we completed first 7 examples of this exercise. So last 3 examples are remaining, that is 8, 9, 10. So let us see the example number 8. Find the area of the region bounded by the curve. So this curve is the parabola y minus 1 whole square plus 4 into x plus 1. Obviously vertex not at origin. And second, this is y is equal to x minus 1. This y is equal to x minus 1, this is a straight line not passing through the origin. So बहुत लंबा solution है. So ये दो बोर्ड तो लगेगी इसको सॉल्व करने में. So lengthy solution है, definitely 4 मार्क का एग्जाम्पल है. एक्चुअल पैराबोला का फॉर्म ये होता है y minus 0 whole square is equal to 4a x minus 0. So this is 0, this 0 is the vertex at origin. But ये parabola not at the origin, vertex not at the origin. So given curve is parabola, that is y minus 1 whole square is equal to 4 times x minus 1. इस प्लस 1 को मैंने माइनस इंटू माइनस 1 लिखा. सो देयरफॉर वर्टेक्स एट माइनस 1 कॉमा 1 माइनस 1 कॉमा 1. दिस माइनस 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड negative x axis. This plus 1 means right hand side positive y axis. Given line is y is equal to x minus 1. So replace y is equal to x minus 1 in this. So therefore, so what we have to find actually, we have to find the intersection point of straight line and parabola. ये दो कर्व कहाँ मीट होते, कहाँ इंटरसेक्ट होते, we have to find out that point. Means we can draw, we can take the graph of the curve. हम उसका डायग्राम निकाल सकते हैं. Put y is equal to x minus 1 here. X minus 1 whole square is equal to 4 times x plus 1. So x minus 2 whole square is equal to 4x plus 4. So x square minus 4x plus 4 plus 4x plus 4. ये 4 4 0 हुआ है, 4 minus 4 0 कैंसिल हो गया. वो x square minus 8x is equal to 0. x into x minus 8 is equal to 0. Therefore x is equal to 0 and x is equal to 8. ये दो पॉइंट मिल गए हमें, x is equal to 0 and x is equal to 8. Now put at x is equal to 0. हम x is equal to 0 देखेंगे कितना है. x is equal to 0. So y कितना बनता है देखो, लाइन पे रखो. 0 minus 1 0 minus 1. So therefore y is equal to minus 1. X is equal to 8. Y is equal to 8 minus 1. Therefore y is equal to 7. Therefore parabola and line meets at 0 comma minus 1 0 comma minus 1 and 8 comma 7. सो पैराबोला फाइंड पहले ड्रा करेंगे. ये पैराबोला, ये उसका वर्टेक्स है. एक्चुअल वर्टेक्स किसे कहते हैं? ये जो पिक पॉइंट है, जो पिक पोर्शन है कर्व का, जहां से इक्वली पैराबोला डिक्रीज होता है, उस पिक पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं. एवरी टाइम वर्टेक्स, अभी तक पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन में ही था. सो वी डिफाइन द वर्टेक्स इज व्हाट? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व टू इट्स एक्सिस. बट ये पैराबोला सेकंड क्वाड्रेंट में. व्हाई सेकंड क्वाड्रेंट? बिकॉज वर्टेक्स कहाँ पर है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव.
minus x axis and plus y axis. That is what in second quadrant. So इस second quadrant में है ये पैराबोला. दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट -1, 1. ये है -1, 1. राइट. अब दिस लाइन 0, -1, ये 0, -1 and 8, 7. ये 8 और ये 7. ये लाइन, ये पॉइंट है. थोड़ा वर्टेक्स ऊपर लेंगे हम. अब एक्चुअल डायग्राम आपको थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा. ये पैराबोला का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है 0, -1. दिस इज 0, -1. और ये जो पॉइंट है ये है 8, 7. So obviously this is 0, 8, 0. And we have to find this portion, area of this shaded portion, bounded portion. जो भी bounded portion है मैं उसको लाइन से शेड करता हूँ. So पिक्चराइज बनने के बाद एरिया डिफाइन होता है और उसी का हमें एरिया फाइंड करना है. सो एक्चुअली डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको बोर्ड एग्जाम में कोई वेटेज नहीं दिया है. सो ड्रॉ रफ स्केच. ये सिर्फ निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें उसको नोटेशन देना है. ये तो O है. इस पॉइंट को हम ये दिस इज A पॉइंट, this is B point, this is a C point, this is a P point, ये D, A, E और यहाँ एक F. ठीक है. So this is the diagram. What is the required area? A, B, C, D, P, E, F, A. So how to find this required area? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो A जो है 0 to, ये यहाँ का ये पॉइंट हमें मालूम होना जरूरी है. ये भी पॉइंट मालूम होना जरूरी है. F and C. How to find that point? Let us see. So बहुत सारी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है यहाँ पर. This parabola cuts the y axis. ये पैराबोला y axis को कट करता है. That's why x is equal to 0. This straight line cuts the x axis. Therefore, we taking y is equal to 0. So let us see here. Parabola cuts y axis. Therefore, x is equal to 0. अगर कौन सा भी कर्व y को कट करता है, y एक्सिस को कट करता है, तो ऑब्वियसली x कितना होता है? 0 होता है. सो x 0 ले लो. यहाँ पर एक 0 रखो. Therefore, y minus 1 whole square is equal to 4 times 0 plus 1. Y minus 1 whole square is equal to 4. Y minus 1 is equal to plus or minus 2. Y minus 1 is equal to plus 2. Y minus 1 is equal to minus 2. So y is equal to 3. Y is equal to minus 1. So therefore 0 3 0 minus 1, ये 0 3 बनेगा. ये पॉइंट है 0 3. 0, 3. We call this is F. F. EF. Okay. 0, 3. 0, 3.
0, -1। तो ये तो -1 अपना आया ही था, सो ये -1 आपने पहले फाइंड किया था। नाउ गिवन लाइन कट्स x एक्सिस, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। y कितना है? 0 है। सो y 0 है तो लाइन में y 0 रखो, देयरफॉर x - 1 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 1। सो ये पॉइंट है C, दैट इज 1, 0। अब सब पिक्चर क्लियर हो गया कि एरिया का, सब पॉइंट क्लियर हो गए। अब एरिया फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सो लेट अस रिवाइज द एग्जांपल अगेन। We have to find the area of the region bounded by the curve. This curve is parabola in this form. So here -1 and this is 1 and this is -1. -1, 1. -1, 1. पहला x coordinate abscissa, y coordinate that is ordinate. This is the coordinate that is the vertex. This parabola having vertex at -1, 1 means obviously in the second quadrant. X negative, y positive means second quadrant में. Given line y is equal to x - 1. This given line does not passing through the origin because there is a constant term. It is obvious thing. Now put, हमें intersection point find करना है जो y की वैल्यू x - 1 है। ये लाइन जो है ये पैराबोला में पुट करेंगे हम यहाँ पर। ये सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 0 मिल गई और x की वैल्यू दूसरी 8 मिल गई। सो 0, 8। x पहला 0 रखेंगे, दूसरा 8 रखेंगे, y की वैल्यू -1 and 7 मिल गई। So this parabola and line meets at 0, -1, 8, 7। पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। So these are the meeting point, intersection point of given two curves. One is line and other is parabola. So now इस intersection point से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम है, पहला वर्टेक्स ड्रॉ किया, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 0, -1 and 8, 7, दिस इज द लाइन वेयर कर्व एंड लाइन मिट्स एट दैट पॉइंट। अभी जो एरिया फाइंड करना है उसका नाम है A, B, C, D, P, E, F, A। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, ये पॉइंट हमें मालूम नहीं था और ये भी पॉइंट हमें मालूम नहीं था। हाउ टू फाइंड दिस टू पॉइंट्स? दिस point is a what parabola cuts the y-axis and this point is that point, that F point। यहाँ पर पैराबोला y-axis को कट करता है, तो y को कट करता है मीन्स x इज इक्वल टू क्या है? 0 है। सो डेफिनेटली y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस और -1 बनता है, एक +2 और दूसरा कौन सा? -2। सो ये हो गया 0, 3, 0, -1, ये 0, 3 और ये 0, -1, ये तो पहले फाइंड हुआ था। अब this line cuts the x-axis, therefore we can find out the point C. Cuts the x-axis में y is equal to what? 0, x is equal to what? 1. So 1, 0. अब एरिया 3 पार्ट में डिवाइड होगा। वो 3 पार्ट कौन सा है देखो, पहले यहां से यहां फाइंड करेंगे। ये पार्ट इतना फाइंड करेंगे, मैंने उसको थोड़ा डार्क किया है ये, और -1, 2, 3 करेंगे मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। -1 से 3 तक जो इधर का पार्ट है डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, बट एरिया नेवर नेगेटिव टेकिंग एज पॉजिटिव। इधर का पार्ट डेफिनेट नेगेटिव आएगा बट उसको पॉजिटिव लेना है हमें। देखो -1, 2, 3 ये कौन सा पार्ट है? बिलो दी पैराबोला। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ये पार्ट, ये तो यहां से 0 to 8, 0 to 8 ये ऊपर का पार्ट बिलो दी पैराबोला माइनस बिलो दी लाइन, बिलो दी पैराबोला माइनस बिलो दी लाइन। सो ये हो गया फाइनल। ये जो लास्ट ये जो ट्रायंगल है ये एरिया कैसे फाइंड करना है? ये एरिया है बिलो दी लाइन, लाइन की बिलो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन देखोगे तो ये बिलो दी लाइन है। सो बिलो दी लाइन कैसे? 0 to 1 लेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे लाइन। सो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। ये सब हमें डिटेल में लिखना है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड
area AB, ABC, ABCDP, CDP, EFA, EFA, ये अपना एरिया, दिस रिक्वायर्ड एरिया which is equal to area ABOF, ABOF A प्लस कौन सा OCDPEFO, एरिया ऑफ OCDPEFO प्लस A1, A2 और A3। अब इसको A3 कौन सा है, थर्ड एरिया कौन सा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको OBCO, दिस इज द एरिया 1 2 3 एरिया। ये विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना पड़ेगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस पोर्शन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो तो सिंपल है। सो ये हमें फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो दिस इज द, हम ये थोड़ा रिमूव करेंगे वन बाय वन। अब डायग्राम तो वैसे रहने देंगे, सिर्फ एरिया फाइंड कर। ये नंबर 8 एग्जाम्पल, आई विल रिमूव इट। बहुत बड़ा सॉल्यूशन। A1 एरिया ऑफ ABOFA। सो पहला एरिया कर कौन सा है, y-1 होल स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, दैट इज y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1। सो x इज इक्वल टू f ऑफ y के फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू y-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू 1/4 into bracket y-1 whole square plus 1 राइट को -1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो एरिया coordinates y is equal to -1, y is equal to 3, and y is equal to -1, y is equal to +3 and y axis. So area is equal to integration from -1 to 3, here 1/4 y-1 whole square -1 dx dy with respect to y करना है. So 1/4 ये 4 से डिवाइड किया, उसके बाद -1 किया है, +1 इधर -1 बन जाएगा. So now we can integrate this. So 1/4 taking outside, y-1 whole cube by 3, -1 का इंटीग्रेशन y from -1 to 3, right? So this is equal to 1/12 in bracket 3 - 1 2, 2 का क्यूब 8 -3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/12 -1 -2 का क्यूब 8 -8, और ये -1 यहाँ पर माइनस +1, ठीक है. 2/3 -3 -2/3 +1 2 - 9/3 -3 - 2 1/3. So this is -7/3 -1/3
this is minus 8 by 3. So A1 it is equal to minus 8 by 3. मॉडुलस में लिखो प्लस 8 by 3 स्क्वायर यूनिट्स. सो ये होगा माइनस 8 by 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये पहला एरिया होगा, ये एरिया. अब उसके बाद हमें फाइंड करना है ये एरिया. हाउ टू फाइंड दिस एरिया? नाउ सेकंड एरिया, डायग्राम रिमूव नहीं करेंगे हम. दैट इज A2. A2 एरिया जो इतना पोर्शन है 0 to 1. A2 एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ OCDPEFO is equal to 0 to 1 below the parabola. dx minus 0 to 1 or 1 to 8. 0 to 8 below the parabola, 1 to 8 minus 1 to 8 below the line dx. 1 to 8 below the line. Definitely we'll get this area. इसको A2 है, ये A1 और A3, A2, A1, A2, A3. सो इतना एरिया फाइंड करना है. पहले A2 हो गया हमारा, A1 होगा, A2 देखो बिलो दी पैराबोला. सो पैराबोला कौन सा है हमारा? सो देयरफॉर y minus 1 whole square is equal to 4 times x plus 1. सो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. y minus 1 is equal to 2 times under root x plus 1. सो y is equal to 2 times under root x plus 1. माइनस 1 इधर क्या उतना हो जाएगा? प्लस 1. इक्वेशन सेकंड. अब लाइन कौन सी है? लाइन है y is equal to x plus 1 है ना. y is equal to x plus 1. x minus 1 है. y is equal to x. it equation third. So 0 to 1, 1 to 8 एरिया होगा ये. मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत बड़ा लंबा सॉल्यूशन है. आप देखो A2, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. A2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, पैराबोला है 2 अंडर रूट x plus 1 plus 1 minus 1 इधर plus 1. इज इट क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू x. और ये माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 8. लाइन कौन सी है? x minus 1 dx. सो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 into x plus 1 raised to 3 by 2 अपॉन 3 by 2. 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 1. इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम इसका. सेकंड ये कर्व बिलो द पैराबोला माइनस बिलो द लाइन. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ A2. माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2. 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to 8. सो बेस्ट वेट इज 4 by 3. 1 plus 1 2, 2 raised to 3 by 2. 1 plus 1 2, 1 2 0 to 1, 0 to 8 है यहाँ पर, नॉट 1. 0 to 8 है. 0 to 8 यहाँ से यहाँ तक है. 0 to 8. 8 plus 1 9 plus 8 ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 by 3
0 plus 1 1 plus 0, 0 plus 1 1 raised to 3 by 2 1, 4 by 3 plus 0 एग्जैक्टली। ये देखो आप 8 स्क्वायर 16 by 2 minus 8, 1 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1. Now calculation, 4 by 3, 9 root 9 is 3 plus 8 minus 4 by 3 minus 8 minus 8, 8 का स्क्वायर 16, 16 by 2 is 16 by 2 is 8, 8 by 8, 8 minus 8 is 0, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, minus into minus plus 1 by 2. कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 3 कैंसिल, 9 4 जा 36, 36 plus 8, 36 plus 8 is 44, minus 4 by 3, minus 1 by 2. This implies a 12, 132 minus 1 by 3 minus 1 by 2, which is equal to 126 by 3 minus 1 by 2. 126 plus 124 होगा नहीं, 126 plus 4 132 नहीं ना, 128 होगा 128. So this is equal to 3 2s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are 4 5, 256 minus 1. So 255 by 6. ये टू आ गया 255 by 6. यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 है, 64 by 2, 64 by 2 32, 32 minus 8 26, 26 24, 24 minus minus plus half. 8 का स्क्वायर 64, 64 by 2 32, 32 में से 8 गया 24, 24 plus 8 32 है। तो 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, minus into minus plus 1 by 2. ये थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। सो यहाँ पर 48 plus 1 49 by 2, ये 49 by 2, ये 6 7 2 147. Now calculation is what here? This is equal to 256 minus 147, 9 0 109. So A2 109 by 6 square units. A1 हो गया, A2 हो गया। अब मैं यहां पर A3 फाइंड करता हूं। A3 कैसा है? 0 to 1 below the line, 0 to 1 below the line. Line is what? X minus 1. अब देखो ये 0 to 1 ये बिलो द लाइन कैसे टुवर्ड्स ओरिजिन। देखो इसको ओरिजिन की तरफ देखो, एक बिलो द लाइन होगा 0 to 1। डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, लेकिन हम उसके पॉजिटिव करेंगे बिकॉज ये बिलो द एक्स एक्सिस है। ऑब्वियसली एरिया नेगेटिव आएगा, बट वी टेकन एट पॉजिटिव बिकॉज एरिया नेवर नेगेटिव। देखो ये 1 एक्स का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 1, 1 by 2 minus 1, minus 1 by 2. A3 is minus 1 by 2. Consider as plus 1 by 2 square units. A1, A2, A3. So finally A is equal to, this is A1
plus A2 plus A3. A1 is 8 by 3, A2 is 109 by 6 and A3 is 1 by 2. A3 is what? 1 by 2. अब इसको कैलकुलेशन करना है प्रॉपरली. सो दिस इक्वल टू 6 इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट टू. सबको भी 6 सबका 6 एलसीएम ले लो. 3 6 एंड 2. यहाँ पर 3 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 109 प्लस 3. I'll write here. So required area is equal to, देखो 109 plus 16 plus 3 is 19, 8 2 128. So 128 by 3. टेक्स्ट बुक में आंसर में मिस्टेक है, बट दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट, डोंट टेक इट डाउट. 128 by 3 स्क्वायर यूनिट्स. थोड़ा और एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं सॉल्यूशन. ये तो इसको मार्क तो 10 बार का क्वेश्चन रखा तो भी कम हो जाएगा, इतना बड़ा सॉल्यूशन है. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन वो समझ में आना चाहिए. A1 प्लस A2 प्लस A3. A1 विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है. A1 -1 to 3 लेना है. ये बिलो दी पैराबोला है, बिलो दी पैराबोला टूवर्ड्स ओरिजिन, बिलो दी पैराबोला -1 to 3. सो पैराबोला को लिखो सिर्फ -1 to 3. डेफिनेटली विल गेट दिस A1. यहाँ तक ये A1. A2 ये जो पोर्शन है OC, इसको नाम दिया था मैंने B, शायद ये B होगा. नहीं, इसको नाम नहीं दिया, ठीक है ना. OCPEFA, ये OCDPEFO, ये बिलो दी पैराबोला माइनस बिलो दी लाइन है. बट बिलो दी पैराबोला कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 8 तक है. बिलो दी लाइन कैसे? 1 to 8 है, 1 to 8. सो ये उसका सोल्यूशन यहाँ तक आया था, उसका A2, ये उसका, ये पॉजिटिव आया था, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आया, उसको हमने प्लस कंसिडर किया. एरिया नेगेटिव नहीं होता. अब जो फाइनल ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है बिलो द लाइन. ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव आया था, पॉजिटिव कंसिडर किया. A1 प्लस A2 प्लस A3, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया विच इज बाउंडेड बाय द गिवन पैराबोला एंड द लाइन. सो ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 8. ओके, now let us finish the last two very simple examples of this topic of this exercise, number 9 and number 10. In example number 9, given line is 2y is equal to 5x plus 7, so y is equal to 5x by 2 plus 7 by 2, or 1 by 2 in bracket, 5x plus 7 equation first, and lines x is equal to 2, x is equal to 5. अब इसको डायग्राम निकालने की जरूरत है. क्लियर लाइन दी, स्ट्रेट लाइन दी उन्होंने, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर निकालना है डायग्राम तो ऐसी कुछ एक डायग्राम होगी, वो ये टाइप की डायग्राम, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. x is equal to 2, x is equal to 5, x is equal to 2 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट टर्म. सो ये एरिया हमें फाइंड करना है. वेरी सिंपल टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ओनली एग्जाम्पल नंबर 8 इज वेरी वेरी लेंथी. 30 मिनट 30 to 31 मिनट सिर्फ एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को लगा अपने को. वो एग्जाम्पल 8 था. सो देखो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस इंटीग्रेट करना है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज A is equal to integration from 2 to 5 y dx. Integration from 2 to 5 because lower limit is 2, upper limit is 5. Y is what?
1/2 2 to 5 5x plus 7 dx. Integration of 5x is 5x square by 2 plus 7x from 2 to 5. 5 का स्क्वायर 25, 5s are 125 by 2, 7 5s are 35, 4 2 square is 4, 4 5s are 20 by 2 plus 14, 7 2s are 14. बाकी कैलकुलेशन है, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली. 1/2 सिर्फ मिस्टेक नहीं होना, जैसा लास्ट टाइम मैंने 8 का स्क्वायर 16 लिखा था, 8 2 ऐसा, वो अगर वैसे मिस्टेक हो गई तो आंसर बिल्कुल वेस्ट जाएगा पूरा सोल्यूशन. नाउ लुक एट दिस 125 by 2, ये 10 plus 14 24, 1/2 5 9 1 minus by 2. So here is the answer 1/2 in bracket 8 7 5 4 1 147 by 2. So answer 147 by 4 square unit. So ये सिंपल एग्जांपल आ गया 147 by 4 स्क्वायर यूनिट्स. लाइन दी थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में लिखो, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5, ये लाइन्स 2 लाइन्स विथ x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन होगी. नॉट एक्यूरेट, बट हमें एक्यूरेट चाहिए नहीं है. वी कैन ड्रॉ द लाइन, cuts the draw 2 lines, x is equal to 2 and x is equal to 5. This will be the area. Draw the find out the area by using integration 2 to 5 y dx. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं ग्राफ शेडेड पोर्शन. So answer is 147 by 4 square units. Now we will take final example of the topic number 10. Let us see the last example. Number 10. Given curve is parabola. Parabola है y is equal to 4x, that is x square is equal to 1 by 4y. Vertex at origin, no doubt, vertex at origin. अपवर्ड साइड में ओपन होने वाला पैराबोला है, y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो टाइप का पैराबोला है. सिंपल एग्जांपल ये भी है, कुछ डिफरेंट लॉजिक नहीं है, वेरी कॉमन. y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4. सो टोटल एरिया फाइंड करना है हमें. y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू ये 1 और ये 4, राइट. अगर विथ रिस्पेक्ट टू 1 to 4 करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 रूट y, इक्वेशन फर्स्ट. टोटल एरिया ट्वाइस करना पड़ेगा. First line is y is equal to 1, second line is y is equal to 4. So he has not given any particular condition, find out area in first quadrant only. अगर first quadrant only word वहाँ पे रहता तो twice करने की जरूरत नहीं. By symmetry of parabola, required area is this area is double the required, this total area is twice by symmetry of parabola. So therefore required area is A is equal to 2 times
1 to 4 x dy with respect to y, because y axis he has clearly mentioned y axis, ये यहाँ पर दिया है y axis. So this line is y is equal to 1, this line is y is equal to 4. ये पूरा y axis है. ये 2 1 to 4 x is what? 1 by 2 root y dy. 2 cancel. 1 to 4 y raised to half dy. Integration of y raised to half is y raised to 3 by 2 upon 3 by 2 from 1 to 4. A 2 by 3, 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2. A 2 by 3, 4 raised to 2 by 3 by 2 is 4 root 4 minus 1 root 1. 4 raised to 3 by 2 कितना होता है? 4 root 4 होता है. 4 raised to 1, 4 raised to half. 1 plus half is 3 by 2. So here is the answer. ये is equal to, ये 2 by 3. 4 into 2 is 8. 8 minus 1. 7 2s are 14. 14 by 3 square units. So this is the answer. सो आंसर आएगा 14 by 3 स्क्वायर यूनिट्स. सो ये आखिरी एग्जांपल है. हियर देखो एग्जांपल में क्या दिया था? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y एक्सिस एंड द लाइंस y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू. ओके, 2 टाइम्स करना पड़ेगा. दिस इज द आंसर 14 by 3. सो देखो जितने एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट और मेन एग्जाम्पल थे, जितने सारे एग्जाम्पल मिसलिनियस में थे और एक्सरसाइज में थे, वो सब मैंने पूरे लिए हैं. सो दिस सिर्फ 8 नंबर का एग्जाम्पल थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है. बाकी ओवरऑल टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल. सो हियर total integral calculus is completed here. In integral calculus there are 3 topics. One is indefinite integration, second is definite integration, and third is applications of definite integration. We'll take all 3 topics very effectively and very wonderfully. Okay, so topic is completed, applications of definite integration. On next day we'll start one more topic of calculus, that is differential equation. So today I will stop here. Thank you very much.